بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پرائم ٹائم وتھ ٹی ایم۔ میں ہوں طارق محمود۔ پاکستان تحریک انصاف کی کور کمیٹی کا اجلاس 27 مارچ کو ڈی چوک پر جلسہ ہوگا، اناؤنسمنٹ ہوئی ہے۔ ٹارگٹ ہے کہ 10 لاکھ افراد کو جمع کر لیا جائے۔ مولانا صاحب کہتے ہیں کہ 10 لاکھ افراد کو نہ جمع کریں، 172 افراد کو قومی اسمبلی کے اندر جمع کر لیں تاکہ پتہ چل جائے کہ جو ممبران کی اکثریت ہے اس کا اعتماد آپ کے اوپر ہے۔ فواد چودھری صاحب کہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو ارکان ہیں ان کو انہی لوگوں میں سے گزر کر ووٹ ڈالنے کے لیے جانا پڑے گا، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جو عوام کا پریشر ہے وہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے ایم این ایز کے اوپر ہوگا۔ ملاقاتوں کا سلسلہ جاری ہے۔ متحدہ قومی موومنٹ کے وفد نے آج ملاقات کی ہے، ایک مرتبہ پھر پاکستان پیپلز پارٹی کے اعلیٰ قیادت سے یعنی آصف علی زرداری صاحب سے، اور انہیں اپنا چارٹر آف ڈیمانڈ پیش کیا ہے جو کہ بنیادی طور پر سندھ کے جو لوکل گورنمنٹ سسٹم ہے اور بلدیاتی نظام سے متعلق جو متحدہ قومی موومنٹ کے مطالبات اور خدشات ہیں وہ پیش کیے ہیں، اور بنیادی مطالبہ جو ایم کے ذرائع کہتے ہیں وہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق جو لوکل گورنمنٹ کا نظام ہے اس پر منوعن عمل کیا جائے، ساتھ ساتھ شہری علاقوں کے ترقیاتی پیکیج اور لوگوں کے لیے جو روزگار کے مواقع ہیں، اس طرح کی کچھ چیزیں ہیں جو انہوں نے بنائی ہیں۔ اور اسی طرح کی چیزیں انہوں نے پاکستان مسلم لیگ نون اور مولانا صاحب کے لیے بھی ایک پروپوزل بنایا کہ اگر اپوزیشن ان کے ساتھ اس پہ راضی ہوتی ہے تو وہ ان کے ساتھ جا سکتے ہیں۔ ان کی اب سے کچھ دیر قبل ایم کے ایم کا وفد جو ہے وہ چودھری شجاعت حسین صاحب کی رہائش گاہ پہ بھی پہنچا ہے، اور یہ اتحادی آپس میں بھی مذاکرات کر رہے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ جو اپنے نوٹس ہیں وہ ایکسچینج کر رہے ہیں۔ ساتھ ساتھ عمران خان صاحب جو ہیں وہ بھی اتحادیوں کے ساتھ رابطے کر رہے ہیں۔ اطلاعات یہ ہیں کہ اب وہ جی ڈی اے اور بلوچستان عوامی پارٹی کی جو قیادت ہے ان کے ساتھ بھی اور ان کے پارلیمانی جو لیڈرز ہیں ان کے پاس جائیں گے، ملاقاتیں کریں گے۔ حکومت کا یہ دعویٰ بھی ہے کہ اپوزیشن کی جانب سے 15 سے 20 کروڑ روپے کی فی رکن قومی اسمبلی جو آفرز ہیں وہ دی جا رہی ہیں، وہ خریدنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو بہت ہی گرما گرمی ہے سیاسی ماحول میں۔ الیکشن کمیشن نے بھی عمران خان صاحب کو نوٹس دیا جو انہوں نے دیر میں انتخابی جو ضابطہ اخلاق ہے اس کی خلاف ورزی کی۔ تو تمام معاملات کے اوپر آج کے پروگرام میں گفتگو کریں گے۔ میرے ساتھ موجود ہے پاکستان تحریک انصاف کی رکن قومی اسمبلی عالیہ حمزہ صاحبہ، جمعیت علماء اسلام کی رہنما رکن قومی اسمبلی محترمہ شاہدہ اختر علی صاحبہ، پاکستان پیپلز پارٹی کی صوبائی وزیر محترمہ شعلہ رضا صاحبہ، اور پاکستان مسلم لیگ نون کے سینیٹر رانا مقبول صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے۔ عالیہ صاحبہ، کور کمیٹی کا اجلاس اب 27 مارچ کو جو عوامی اجتماع ہے یہ بیسیکلی کس کے اوپر پریشر بلڈ کرنے کے لیے ہے؟ یا اپنے ارکان پہ پریشر ہے، اپوزیشن پہ پریشر بلڈ کرنا ہے، یا اوور آل اپنی اسٹرینتھ شو کرنی ہے کہ جی عوام ہمارے ساتھ ہیں؟ مقصد کیا ہے اس شو آف پاور کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تھینک یو حافظ صاحب۔ حافظ صاحب، سب سے پہلے تو آپ نے جو شروع میں ایک بات کی تھی نا، میں اس بات کے اوپر ذرا آ جاؤں۔ آپ نے کہا تھا مولانا نے ایک سٹیٹمنٹ دیا اور انہوں نے کہا ہے 10 لاکھ بندے نہ لاؤ، 172 بندے پورے کر دو۔ یقین مانیں ہمارے جلسے دیکھ کر، میلسی کا جلسہ، دیر کا جلسہ، کل حافظ آباد کا جلسہ دیکھ کر نا، یہ ویسے ہی اتنے ان کے دماغی توازن تو بالکل ہی مجھے لگتا ہے نا ہل گیا ہے۔ بات صرف اتنی ہے جن لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ تحریک عدم اعتماد پیش کرنے کے بعد 172 بندے انہوں نے لے کر آنے ہیں، انہوں نے بندے کیا پورے کرنے ہیں اور انہوں نے کرنا کیا ہے، یہ تو مجھے خیر سمجھ ہی نہیں آتی۔ دوسری بات آپ نے یہ کہی کہ جی ہم نے پریشر کس پر ڈالنا ہے۔ ہمیں صرف آپ کو سٹیٹمنٹس کچھ میں یاد کرا دوں۔ آپ کو یاد ہے ہمیں تو یہ کہا جاتا تھا ہم تو عوام میں جا ہی نہیں سکتے، عمران خان صاحب تو اپنی مقبولیت لوز کر چکے ہیں۔ عمران خان صاحب کو تو کسی محترمہ کی سٹیٹمنٹ ہے، عمران خان صاحب کو تو اگر وہ عوام میں جائیں گے تو ان کو تو ہیلمٹ پہن کر جانا چاہیے۔ تو ہم نے بھی کہا کہ ذرا ہم تو دیکھیں کہ ہیلمٹ پہن کر اب کس کو جانا پڑے گا۔ آپ ان کے جلسوں کا بھی مقابلہ کریں، آپ ہمارے جلسوں کا بھی مقابلہ کریں، آپ دیکھیں کون غیر مقبول ہو گئے، کس کو ہیلمٹ پہن کر جانا چاہیے۔ عوام کا فیصلہ سب سے بڑا فیصلہ ہے، اور ہم نے عوام کو صرف اتنا بتانا ہے کہ یہ وقت سیاست بچانے کا نہیں ہے، ریاست بچانے کا ہے، یہ پاکستان کے وقار کو بلند کرنے کا ہے، یہ پاکستانی قوم کو موقع مل رہا ہے شان اور آبرو سے جینے کا۔ فیصلہ کریں، ان لوگوں کا ساتھ دینا ہے جو سب سے بڑی منڈی ضمیروں کی لگانے لگے ہیں، یا ان کا ساتھ دینا ہے جن کو سزا اس بات کی مل رہی ہے کہ آپ نے امریکہ کو ایبسولوٹلی نوٹ کہا ہے، یا یورپین یونین کو یہ کہا ہے کہ ہم آپ کے غلام نہیں ہیں، یا انڈیا کو للکار کر کہا ہے کہ کس طرح سے تمہارا میزائل ہماری سرزمین میں آ کر گرتا ہے، معافی مانگو اس کے اوپر، اور ہمیں اس پہ سالڈ ریزننگ چاہیے، یا ڈرون اٹیکس کو نہ کرنے کے اوپر ہے۔ اب یہ عوام کا فیصلہ ہے، اور ہم عوام کی عدالت میں بھی جائیں گے، اور ہم دیکھ
دیکھیں گے کہ یہ لوگ کیا کرتے ہیں. انہوں نے تو ابھی سے کھسکنا شروع کر دیا ہے. آپ نے ان کی بوکھلاہٹ, بالکل ان کی بوکھلاہٹ ہے. کل ایک ہمارے وہ جو آتے ہیں ماشاءاللہ سے جوکر صاحب, وہ جو زیادہ بارش آتی ہے تو زیادہ پانی آتے ہیں, اس کے بعد ایک نیا میم تھا تو کانپے تو اپوزیشن کی ٹانگ ہی رہی تھی. اس کے بعد کل انہوں نے ایک اور نیا انکشاف کر دیا کہ اتوار والے دن ہم بچے اسکول کے جو ہے نا, ہم نے بچوں کے اسکول میں چھٹی کرا دی ہے. سو یہ ان کی کانپیں بھی ٹانگ رہی ہیں, یہ بوکھلاہٹ کا بھی شکار ہے. ایک آ کر ایک مذائقہ خیز دیتا ہے. ایک سٹیٹمنٹ تو خیر میں آپ کو بتانا ہی بھول گئی, بل گیٹس والی سٹیٹمنٹ, مطلب اللہ کو مانے ان کے کانوں میں جا کر کون یہ ایسی باتیں کرتے ہیں یا ان کو کون غلط پرچیاں پکڑا جاتے ہیں. اس لیول کے جو اپنے آپ کو جسے کہنا جو سو کالڈ ٹاپ لیڈرشپ آف دیز 3 پارٹیز, جو اس وقت اپنے آپ کو سو کالڈ لیڈرز ہیں ان کے, وہ آ کر بوکھلاہٹ میں ایسی سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں. تو آپ یہ دیکھ لیں, خان صاحب نے تو عدم اعتماد سے پہلے ان کا ذہنی توازن بگاڑ دیا ہے. تو آگے کیا ہونا ہے, آگے دیکھتے جائے. ابھی تو خان صاحب نے اور 10 دن کہا ہے آگے آگے بھاگو, دیکھو میں تمہارا کیا حال کرتا ہوں. شاہد صاحبہ, عالیہ صاحبہ کہتی ہے بندے تو آپ نے پورے کرنے ہیں 172 اسمبلی کے اندر, ہم عوام کی عدالت میں جا رہے ہیں کیونکہ ہم نے اپنے آپ کو ایز اے سوورن اسٹیٹ جو ہے اس وقت دنیا کے سامنے پیش کر دیا ہے, کو بغیر پریشر کے انڈیپینڈنٹ فورن پالیسی. جی دیکھیں حافظ صاحب, جس طرح کا لیڈر ہوتا ہے اسی طرح کارکن ہوتے ہیں. لیڈر ایبیوز لینگویج پہ پورا پورے پاکستان کے نہ صرف عوام بلکہ آج تو ایک عالم دین جس کو اکراس میں سمجھتی ہوں کہ پولیٹیکل پارٹیز اور سیکٹیرین بیسس پہ یا جو بھی آپ دیکھ لیں, یعنی تمام میں سمجھتی ہوں کہ اہل علم جو ہیں وہ ان کو مانتے ہیں, ان کے فتووں کو مانتے ہیں. انہوں نے بھی آج درس دیا ہے کہ وہ اس طرح کی لینگویج سے اجتناب کریں. اور کل ان کے ہی اتحادی چودھری شجاعت حسین, قابل احترام ہے سیاست میں, ان کا ایک مقام ہے, انہوں نے بھی سورہ حجرات کا ان کو مشورہ دیا ہے کہ اس کی تفسیر اور اس کا ترجمہ تھوڑا پڑھ لیں. مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ ان کی یہ روش جو ہے وہ کس طرف ان کو لے کے جا رہی ہے. بھئی یہ تو کلیئر میتھمیٹیکل گیم ہے. 172 ہم نے پیش کرنے ہیں, ثابت کرنے ہیں, اور انشاءاللہ اس سے زیادہ ہم کر کے دیں گے. ہم کانفیڈنٹ ہے. ہمارا جو کام تھا آئینی اور قانونی دائرے میں جمہوریت کی بقا کے لیے ہم وہ استعمال کر رہے ہیں. ہم تو ان کی طرح حربے استعمال ہی نہیں کر رہے جو یہ لوگ ہمیں بار بار اس پہ وہ کر رہے ہیں, اشتعال دلا رہے ہیں لفظی طور پہ بھی اور باقی بھی, انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی. لیکن ہم ہر ایک کام جو ہے قانونی دائرے میں کر رہے ہیں. ہم نے تحریک پیش کر دی ہے اسمبلی میں. اب یہ ہمت پیدا کریں اپنے جان میں اور سپیکر بلائے قومی اسمبلی کا اجلاس. ہم 24 گھنٹے میں نیکسٹ آپ کو جو طریقہ کار ہے موو کر دیں گے, لیو گرانٹ ہوگی اور ہم اپنے موشن پہ آ جائیں گے, اور ڈویژن میتھڈ کے تحت ہم اپنا میتھمیٹیکل گیم جو ہے وہ 1 2 3 کلیئر ہو جائے گا. آپ 10 لاکھ نہیں 20 لاکھ بھی لے کے آئے, اب یہ عوام آپ کو NRO نہیں دے گی. یہ انڈر پریشر آ چکے ہیں. فاتر العقل تو تھے لیکن اب انہوں نے بالکل ثابت کر دیا, نہ صرف پرائم منسٹر نے بلکہ ان کے اراکین اور ان کے ساتھ جو چند ایک لوگ ہیں وہ اپنے عمل سے بھی یہ ثابت کر چکے ہیں کہ یہ کس دورائے پہ چل نکلے ہیں. اگر یہ اسٹرینتھ کی بات کرتے ہیں تو حضرت مولانا فضل الرحمان کی ایک کال پہ آدھے گھنٹے میں پورا پاکستان جیم ہو کے رکھ دیتے ہیں. کہاں یہ کہ سرکاری مشینری لے کے اراکین کو کہا جاتا ہے آپ 20,000 لے کے آئے 10,000, عوام خود آتی ہے لیڈر کے کہنے پہ. اس طرح زبردستی پکڑ دکڑ سے یہ کاؤنٹنگ پوری کر کے, اب یہ وقت نہیں ہے. اب ہوش کے ناخن لینے چاہیے, قانونی طریقہ کار ہے اس کے مطابق جو ہے لے کے آئے اسمبلی میں, آپ کو کلیئر پتہ لگ جائے گا کہ اسٹرینتھ کس کے پاس ہے. حواس باختہ یہ لوگ ہیں الحمدللہ, ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے. لیڈرشپ وہ تھرو آؤٹ انہوں نے بہت قربانیاں دی ہیں. سیاست میں ان کا ایک نام ہے, وہ نہ اس طرح غلط فیصلے کرتے ہیں اور نہ وہ اس طرح بوکھلاہٹ کا یہ شکار ہے, بلکہ وہ ہم تو ان کو سمجھاتے ہیں کہ اپنی بوکھلاہٹ
में इतना आगे ना जाए कि पानी सर से गुजर जाए। शैला साहिबा, बौखलाहट की बात आलिया साहिबा ने की, वो कहते हैं जी कि चूंकि खौफ तारी है आप पे, इस वजह से आप इस तरह के स्टेटमेंट देते हैं कि जी इतवार को बच्चों की छुट्टी और फिर दूसरी चीज़ें, हम तो कॉन्फिडेंट है और मासेस जो है ना वो हमारे साथ हैं, लोग आप देख लें कितने बड़े बड़े जलसे कर रहे हैं। खौफ तो उन पे तारी है जो दूसरे लीडर्स के जुमले एडिट करके उनको अपने हिसाब से बनाते हैं और सिर्फ रोज़ क़यादत पे यकीन रखते हैं, रोज़ क़यामत पे नहीं। दूसरों की उर्दू का मजाक उड़ाते हैं, खुद खातिमुन नबीन कह के दिखा दे, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी सही से कहना नहीं आता। और अल्लाह ने पाकिस्तान को 27 रमज़ान को जन्म दिया, हम पे एहसान है। बौखलाए हुए तो वो हैं शुरू से, क्योंकि वो बैसाखियों पे आए हैं। जो अब जलसे कर रहे हैं वो, उनको इलेक्शन कमीशन ने मना किया कि आप ना जाएं, लेकिन वो गए। और पहले भी एक क्लिप वायरल हुई थी कि लित्तर पोला लगेगा अगर आप लोग ना आए। और कल तो ड्राइवर्स की जो है वो गुफ्तगू जो है वो सामने आ गई कि किस तरह हर एक को किस किस की जिम्मेदारी थी 5-5 हज़ार लाने, और एंगल से दिखाया गया कि बस यहाँ पे लोग हैं और भरा हुआ जलसा। तो आप खुश हो जाएं, 10 लाख लोग भी ले आए, लेकिन असेंबली में 172 जो है ना वो भी होने हैं। कहते हैं वो आपने पूरे करने, आलिया साहिबा करिए, आपने इस तरह की बातों का मैं, आप खामोश हो जाएं, आप बहुत बोल चुकी, मेरा टर्न है। अच्छा, तो मेरा कहना ये है कि बारिश तो होती है तो पानी आता है, लेकिन आप तो बहुत अरसे से ही पाकिस्तान में हैं, आपको तो पता होना चाहिए कि APMS स्कूल के बच्चों की दूसरी बरसी और दूसरी सालगिरह में क्या फ़र्क है। तो ये वाली बातों से मसला हल नहीं होगा। असल बात यह है कि इस वक्त भी जब हम आपके साथ प्रोग्राम कर रहे हैं और सारे दिन की जो सूरत हाल है, उस सूरत हाल में अब इन्होंने फिर भेजा हुआ था अपने एक सीनियर आदमी को चौधरी शुजात के पास, और सारी इनकी दौड़ें लगी हुई हैं। MTM के पास भी गवर्नर साहब गए थे, लेकिन कोई बात नहीं बनी। तो सूरत हाल सबके सामने है। और आप 10 लाख लोग ले आए, 20 लाख लोग ले आए, हमने जो है तहरीक अदम एतमाद पेश की है, हमारे पास नंबर है। अब तो आपके 172 हो जाए तो बात है। ठीक, राना मकबूल साहब आप कमेंट कर दीजिएगा। जो हेलमेट वाली बात की आलिया हमजा साहिबा ने कि हमें कहते थे हेलमेट पहन के जाएं, अब देखें कितने बड़े बड़े हम जलसे कर रहे हैं, तो लोग हमारे साथ हैं, पता चल गया कि क्या सूरत हाल है। वो तो शैला साहबा ने जिक्र किया अभी, और दूसरी मेरी बहन ने भी जिक्र किया, ये किस तरह लोगों को लाया भी जा रहा है, इकट्ठा भी किया जा रहा है, लेकिन ये रेलिवेंट नहीं है। अगर इतने पॉपुलर थे तो अभी हाल ही में 16 सीटों में से बाई इलेक्शन में 15 सीटें क्यों हारी हैं? एक सवाल है ना जी। ठीक, बात तो है बैलेट ने फैसला करना है ना, बैलेट तो लोग इनके खिलाफ दे रहे हैं। ये दे आर ओनली रिजॉर्टिंग टू हम्बग एंड प्रोपेगेंडा। और एक कोई जेन्युइन बात हो तो लोग बिलीव भी करें। अब लोग इनके खिलाफ जो उठ खड़े हुए हैं, जो इलेक्टेड लोग भी, सबको अंडर प्रेशर है अवाम की तरफ से। अवाम डिससेटिस्फाइड है, डिसकंटेंटेड है, वो बहुत ज़्यादा परेशान है, गुर्बत की वजह से, महंगाई की वजह से, मिस गवर्नेंस की वजह से, वेल प्रैक्टिसेस की वजह से। जो जो उन्होंने कहा वो कभी नहीं किया। ये हमारी बहन जो है PTI काबिल एहतराम है, लेकिन कभी इनसे ये पूछ रहे हैं कि उन्होंने आटा का स्कैंडल पकड़ा था तो क्या किया उसने, उन्होंने चीनी का स्कैंडल पकड़ा था उसमें क्या किया, वो दवाइयों का स्कैंडल जो अरबों रुपए का था उसमें क्या किया, जो LNC में किया गया उसमें क्या किया, 40 अरब जो है कोविड की जो एड आई थी उसका क्या किया। वो एक बात है, अगर आप सीधा से कैलकुलेट करें तो 980 अरब रुपया बनता है जो पिलफ्रेज हुआ है। ठीक, क्या किया, ये क्या है, वो कॉम्पिटेंस है या इनकॉम्पिटेंस है? ठीक, लोगों को पता है सारी बातों का, इसलिए लोग परेशान होके उठे हैं। अभी तो उन्होंने उठना था इसी सूरत में, क्योंकि अपोजिशन ने कहा था कि अब तो हमें नो कॉन्फिडेंस करना चाहिए। अब इसके ऊपर ये नाराज होते हैं, परेशान होते हैं। सही। और आप इंसैनिटी का ये आलम है, इनका सीनियर मिनिस्टर जो कि हवाबाजी के वजीर हैं, उन्होंने पहले तो बेड़ा गर्क कर दिया PIA का। हमारे 365 या 300 कितने जो पायलट हैं वो जाली है, वो सारी PIA की जो है उसको तबाह करके रख दिया सारी दुनिया में। कोई अक्लमंद आदमी ऐसी बात करता है?
अब आगे आए। वो आप खुदकश बम्बार वाली बात कर रहे हैं राणा साहब? कि मेरा दिल करता है जी, हाँ जी, खुदकश मैं बता रहा हूँ आपको, जी, मेरा दिल करता है कि ये जो अपोजिशन है, ये इसके ऊपर मैं खुद कोई हमला कर दूं। ठीक हाँ जी, ठीक। तो ये मैं गुलाम सरवर रवान की बात कर रहा हूँ। जी जी बिल्कुल, गुलाम सरवर खान। क्या क्या इंसैनिटी नहीं है? ठीक ठीक ये ठीक। इंसैनिटी नहीं है। जी जी, तो ये मैं चले अब आलिया साहिबा का जवाब ले लें, उन्होंने सबके पॉइंट नोट करके रख लिए। एक सेंटेंस शैला साहिबा का ले लें, फिर आलिया साहिबा। जी शैला साहिबा, हम हमको ताने मेरे मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि दूसरों की बौखलाहट इतनी बढ़ गई है। मैं एंकर की मर्जी से बात कर रही हूँ जी। आप कह ले तो फिर एक ही दफा जवाब दे दीजिए। आलम है कि कभी कहते हैं वजीर आजम गर्दन तक हाथ है, फिर बंदूक की शिस्त के बजाय नशिस्त कह रहे हैं उर्दू दां, और फिर एक ने कहा मैं खुदकुश बम्बार बन जाऊं, चौथे ने कहा कि जिनको वोट देने जाना है वो 10 लाख लोगों के दरमियान से गुजर के जाएंगे। मतलब धमकी पे धमकी हद होती है भाई। चले जी आलिया साहब, आपने सबके पॉइंट नोट किए, अब मैं सवाल पूछे बगैर आपकी तरफ। हाँ जी, बहुत शुक्रिया हाफिज साहब। हाफिज साहब, सबसे पहले यहाँ पर बात होती है लैंग्वेज की। अभी मैं दूर तो जाऊंगी ही नहीं ना, मैं तो पिछले 2 दिन की लैंग्वेज, एक आती है वो बीमारी, वो आकर कहते हैं नापाक, कोई कुछ कहते हैं, बोलते हैं कुछ। एक आता है वो कहता है पट्टा, और वो हजरत साहब कहते हैं पट्टा डाल दो, लगाम दे दो। ये तो इनकी लैंग्वेज है, जो अपने आप को उल्मा कहते हैं। दुनिया में जितने भी उल्मा आए थे ना, वो अल्लाह का पैगाम अवाम तक पहुंचाते थे। ये वाहिद एक मैंने मौलाना देखे हैं जिन्होंने नवाज शरीफ का पैगाम जरदारी को और जरदारी का पैगाम शहबाज शरीफ को पहुंचाया। तो इस पर तो मैं आना नहीं चाहती। अब मैं असलियतें जरा बता दूं इनकी। वंस अपॉन अ टाइम ये जो सच्चे खरे मौलाना साहब हैं, मुस्लिम लीग हिंदुओं की एजेंट जमात है। मेरी स्टेटमेंट नहीं है, हजरत साहब की स्टेटमेंट है। फिर आती है एक और स्टेटमेंट, 18 फरवरी 2018, ज्यादा दूर की बात नहीं है, नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी की हुकूमत में खुशहाली आना ही मुमकिन नहीं है। ये भी मेरी स्टेटमेंट नहीं है। फिर आप आ जाएं, खत्मे नबूवत के बिल में जब तरमीम हुई थी ना, इत्तहादी बैठे थे ये उसी हुकूमत में, और जब इनसे ये सवाल हुआ था ना, तो इन्होंने कहा आए बाएं शाएं, क्योंकि ये तो मौलाना थे। उसके बाद आप आ जाएं, ड्रोन अटैक्स की बात हो रही थी। हम तो यहूदी एजेंट है ना, लेकिन ये तो इस्लाम के एजेंट थे। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने उस इजाजत नामे के ऊपर साइन किए। ये असलियत इनकी है। फिर आ जाए, जो इतनी सारी बातें हुई, आईनी कानूनी तरीका, वाओ क्या आईनी और कानूनी नुक्ता निकाला है मेरी बहन साहिबा ने। खरीदो, मालों की बोरियां खोलो, उसके बाद आकर अवाम के नुमाइंदों के उनके जमीर की बोलियां लगाओ, फ्लोर क्रॉसिंग कराओ, हॉर्स ट्रेडिंग कराओ, छांगा मांगा की सियासत करो, और कहो आईनी और कानूनी तरीका है। ये इम्प्रेसिव नहीं है। फिर आ जाए शैला बीबी के ऊपर। शैला बीबी की तो मैं बौखलाहट का इसी से अंदाजा लगा दूं कि आपकी आवाज में और मेरी आवाज में उनको फर्क पता नहीं था, और वो ये कह रही थी मुझे बारी पर बात करने दे। तो उनकी बौखलाहट तो मैं उनका जरा कह दूं। देखें जी, हम तो एक सीधी सी बात कर रहे हैं। 35 सालों से जिन्होंने आज तक सिंध की तरफ देखा नहीं, जिनके सिंध के हालात ये हैं कि सिंध के अंदर मैं ये देख रही थी कि सबसे बुरी हालत है। वहां पर बच्चों को डिवीजन मल्टीप्लिकेशन नहीं करनी आती। ये मेरी रिपोर्ट्स नहीं है, कल की एक रिपोर्ट आई है कि वहां पर वर्स्ट तरीन हालात हैं तालीम के, वर्स्ट तरीन हालात हैं सेहत के। घर का क्या हाल है वहां पर, इनका लाड़काना, जिधर इनकी कब्र, मैयतें सब कुछ पड़ी हैं। ये लोग किस तरह की आकर यहाँ पर कारकर्दगी पर ये नहीं जा रहे। बात सिर्फ इतनी है, अवाम को पता चल गया ये इक्तदार के लिए आ रहे हैं। इनको इस्लाम से नहीं इस्लामाबाद से गर्ज है, और उसी के लिए ये अदम इस्तेहकाम भी करना चाहते हैं। इनकी बातें गुंडागर्दी हमने स्टार्ट नहीं की थी, गुंडागर्दी की थी। कहती थी हमारा हक है, हमने तहरीक अदम एतमाद पेश कर दी। आप अपने अगर हमें इतना ही प्रॉब्लम होता तो ये 10 दिन लेकर जलसी पूरे पाकिस्तान में रहे, एक जगह पर भी। हमने खुद इनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड की है। ये जो हमें आज कह रही है ना, आपने इनकी जलसी की हालत वही देखी थी कि ऐसी कांपे टांग रही थी कि 2 घंटे के अंदर ही सब कुछ पैक किया। हमने तो 126 दिन का धरना दिया था, ये तो 4 घंटे का धरना नहीं दे सके। ये हमें आपने बताया कि अवाम कैसे लाई जाती है। अवाम सच के लिए निकलती है, अवाम
ابو کی کرپشن بچانے کے لیے نہیں نکلتی ہے. عوام نکلے گی, اب جب نکلے گی تو عوام پاکستان کے لیے نکلے گی, حق کے لیے نکلے گی. عوام اس لیڈر کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے جس کو اس کو پتا ہوتا ہے کہ وہ اس کی فیوچر جنریشن کی جنگ لڑ ہے. عمران چلے عالیہ صاحب پوائنٹ آ گیا, جنریشن کی جنگ لڑ ہے. یہ ایک بھی اپنے عالیہ صاحب لڑے, دوسرا بھی اپنے ابو کے مقدموں کی جنگ لڑے. ایک کہتا ہے تم میرے مقدموں سے مجھے بچاؤ, دوسرا کہتا ہے تم میرے مقدموں سے مجھے بچاؤ. اسی لیے عوام ان کے پیچھے نہیں نکلتی ہے. اور ہم نہ وہاں پر سکھر پولیس کی گاڑیاں آتی ہیں, نہ لاڑکانہ پولیس کے اس میں ہمارے بینرز کی گاڑیاں بھری ہوئی جاتی ہیں. عوام خود آتی ہے. آج کی عوام باشعور عوام ہے اور عوام اب فیصلہ کرے گی 27 تاریخ کو خودداری کا, پاکستان کی سالمیت کا, عزت و حمیت کا. ان چوروں کے ساتھ تو نہیں وہ کھڑے. چلے شاہدہ صاحب جو بات عالیہ صاحبہ کی, اگر دیں گی یا 1600, شاہدہ صاحب 800 روپے دیں گی یا 1600. اچھا چلے وہ ان کا پوائنٹ یہ ہے کہ مولانا صاحب جو ہے وہ نہ نون کو اور نہ نون پیپلز پارٹی کو یہ اچھا نہیں سمجھتے تھے. جو عمران خان صاحب کا تھا کہ جی میرے خلاف سب اکٹھے ہو جائیں گے, تو ان کا جو آرگومنٹ میں سمجھاؤں وہ یہی ہے کہ جی عمران خان صاحب کے خلاف آپ کے آپس میں بدترین سیاسی اختلاف ہیں, لیکن عمران خان صاحب نے آپ کو سب کو ایک جگہ پہ کھڑا کر دیا ہے. اگر ان کے رٹا رٹائے باتیں ختم ہو گئی ہوں تو میں عرض کروں جی شاہدہ صاحب, اصل بات یہ ہے, یہ تو جس چینل پہ بھی ہوتی ہے محترمہ الف سے یہ تک یہی کچھ ہم سنتے آ رہے ہیں. یہ لیم ایکسکیوزز ہیں. اب یہ عوام ان کو این آر او نہیں دیں گے. آج یہ اپوزیشن سے این آر او مانگ رہے, ابھی ان کا بچنا بہت ہی مشکل ہے. اور بوکلاہٹ, بدحواسی کا یہ عالم ہے کہ مولانا آ رہا ہے. اصل بات ہی یہی ہے. اور یہ بجائے تعظیم کے کس طرح بد تہذیبی کی طرف یہ لوگ جاتے ہیں. بار بار ان کو کہتے ہیں, اسمبلی میں بھی ان کا یہی شیوا ہوتا ہے. ہمیں سمجھ آ رہی کہ یہ کس طرف ہماری یہ جمہوریت اور یہ جو پارلیمنٹ اتنا باوقار ادارہ ہے, اس میں اس طرح کی خواتین آ کے اس کی جو تعظیم ہے اس کو کمزور سے کمزور ہونے پہ تلی ہوئی ہے. بھئی آپ پڑھی لکھی خاتون ہیں, آپ دلائل سے بات کریں. میں نے قانونی نقطہ آپ کو بتایا ہے. اسمبلی سیشن بلائے, ہم 2-4 آپ کو بتا دیں گے کہ we are more than 172. یہ ملین بلین کی باتیں آپ نہ کریں. سڑکوں پہ اب اس چیز کا فیصلہ نہیں ہونا. عوام جو اپنا فیصلہ کر چکی ہے, اس کے بعد جو آپ کے حالات تھے وہ بھی دیکھ چکے ہیں. تمام سیاسی پارٹیوں نے بھی آپ کو ٹائم دیا. اب مزید آپ کو وقت نہیں ملنا. شاہدہ صاحب کہتے ہیں نوٹوں کی بوریاں کھول دی ہیں, مال خرچ کر رہے ہیں, ضمیر خرید رہے ہیں. کوئی نوٹوں کی بوری نہیں ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں حافظ صاحب, اگر کوئی ایک بندے کو بھی آفر ہوئی ہوتی تو آج یہ تمام چینلز پہ ان کو آگے کرتے. کوئی ایسی بات نہیں ہے. باضمیر لوگ خود آ رہے ہیں, آگے آ رہے ہیں کہ انہوں نے عوام کے پاس جانا ہے. ان کے پاس اور کیا وتیرہ ہوگا عوام کے پاس سوائے اس کے کہ پی ٹی آئی نے ان کو لے کے ڈبو دیا ہے. ان کا پولیٹیکل جو فیوچر ہے وہ بالکل تاریک ہو چکا ہے. اب وہ یہی سیاسی پارٹیوں کی طرف آ رہے ہیں, استحکام دیکھ رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ جو ان کو عوام کہ جو رفاہ کے لیے کام کرے وہ ان کی طرف دیکھ رہے ہیں, اس لیے وہ آ رہے ہیں. آپ کے سامنے ہے ایک کارکردگی. تو یہ بہن مجھے بتا دیں کہ انہوں نے ایکسپورٹ میں کیا اضافہ کیا, امپورٹ میں الٹا اضافہ کر دیا, ڈبل ڈیجٹ پہ انفلیشن چلی گئی ہے. سرکولر ڈیٹ آپ کا 100 میں تھا, آپ 1000 پہ لے کے گئے ہیں. آپ سٹاک ایکسچینج ڈیلی بیسس پہ کریش ہو رہا ہے. کسان آپ کا رو رہا ہے. آپ کو کھاد تو آپ ان کو پرووائڈ نہیں کر سکتے. ایم این ایس ٹی اسکیم لے کے آگئے, ریل اسٹیٹ, پھر یو ٹرن, پھر ایم این ایس ٹی اسکیم, پھر منی بجٹ, پھر ٹیکس ایگزمپشن واپس. یہ کیا تماشا بنایا ہوا ہے آپ نے؟ تو اسٹیٹ بینک میں لے کے آ گئے کرائے کا آئی ایم ایف کا بندہ, اور قانون سازی شخصی بنیاد پہ ہونے لگی ہے. نیب کے چیئرمین کو ایکسٹینشن, جی دوسرے ادارے کی ایکسٹینشن. اب یہ خود ایکسٹینشن مانگ رہے ہیں, در کی بھیک مانگ رہے ہیں, پینڈولم کی طرح روٹیٹ ہو رہے ہیں, کبھی لاہور, کبھی اسلام آباد, کبھی لاہور اسلام آباد.
अब वो चीजें खत्म हो गई हैं। ठीक। इनके इत्तेहादी भी इंशाल्लाह हमारे साथ है, इनके अपने बंदे जमीर की आवाज पे आए, कोई सौदाबाजी नहीं हो रही। एक बंदे का नाम तो ये मैं चैलेंज करती हूँ, आलिया हमजा को अभी बता दे कि जिसको 20 करोड़ 30 करोड़ की ऑफर हुई है, मैं रिजाइन कर दूंगी आज ही। ये मुझे नाम तो जरा अली साहबा, वो शाहिदा साहबा ने कह दिया कोई एक नाम बता दे, मैं रिजाइन कर दूंगी जिसको ऑफर हुई है 20 करोड़ की। इनसे सिर्फ इतना पूछे 27 तक वेट कर ले, इंशाल्लाह वीडियो समेत सब कुछ दिखाएंगे, किस किस को कैसे खरीद रहे हैं, कहाँ नहीं खरीद रहे। यूसुफ रजा गिलानी वाली वीडियो आई थी ना, आपके पास ये भी सारी वीडियोस इनकी निकलेंगी। जो बैरूनी फंडेड अदम इस्तेहकाम की तरफ ये जा रहे हैं ना, सारी इनकी वीडियोस तो वीडियोस बनी है आपके पास, वीडियोस हैं आलिया साहबा? एमएनएस को खरीदने की कोई वीडियोस हैं पीटीआई के पास? हाफिज साहब देखे, मेरी एक बात सुन लें, सब कुछ आएगा सामने, कोई चीज छुपी हुई नहीं रहेगी। और उसमें ऑफर्स की गई हैं, उसमें मैं आज आपको ये बता रही हूँ, सुन ले एक मिनट। देखें जी, सब कुछ ऑफर है, इनको तो बैरूनी फंडिंग हो रही है। हम तो कह रहे हैं वो देखें उनके एम्बेसडर्स आकर जिस तरह से इन लोगों से मिल रहे हैं, जिस तरह से ये यूरोपियन यूनियन को कह रहे हैं। कल तक इमरान खान यहूदी एजेंट था, आज ये खुद कह रहे हैं कि यहूद और नसारा को तुमने बुरा भला क्यों कहा है। मतलब कोई एक स्टेटमेंट पर तो रहे ना। मेरे बारे में एक मिनट सिर्फ इन्होंने मेरे बारे में कहा जी, मैं बिल्कुल मैं कोई खानदानी पॉलिटिकल पार्टी की थी, मैं कोई किसी की साली या किसी की बहन तो नहीं थी। मुझे तो पार्लियामेंट में बिल्कुल बैठने का हक नहीं था, क्योंकि पार्लियामेंट में तो किसी की माँ, बहन, बेटी, साली को बैठने का हक है। एक मिनट हाफिज साहब, जरा जब ये लोग बात करते हैं ना, परवेज खट्टक के फलानी है, वो फलाने के फलाने रिश्तेदार हैं, वो भी बहुत सारी मैं अपनी पार्टी के वर्कर हूं एंड आई एम प्राउड ऑफ इट कि पीटीआई ने एक वर्कर को असेंबली में पहुंचाया, एक पढ़ी लिखी वर्कर को, जिसकी तालीम भी इनसे ज्यादा है, जिसकी फैमिली बैकग्राउंड भी इनसे ज्यादा है, उस डिबेट में कि उसका कोई खानदानी हुआ है। अब बाजे मैंने एक ब्रेक लेनी, आलिया साहब मैं ब्रेक ठेकेदार बनते हैं ना, तो ये तो तौहीने रिसालत पर इतने फिक्रमंद नहीं थे जितने तौहीने अमेरिका और यूरोप पर फिक्रमंद है। अगर ये बात करेंगे तो सुनेंगे हमसे। ठीक है, मैं एक वक्फा ले लूं, वक्फे के बाद आते हैं शैला साहिबा से। ये जो डेवलपमेंट सिंध के हवाले से हो रही है, एमकेएम के साथ मुज़ाकरात चीजें, उसके ऊपर गुफ्तगू करते हैं, और फिर इलेक्शन कमीशन के नोटिस जिसका जिक्र किया शाहिदा साहिबा ने, उस पर भी बात करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। शैला रजा साहबा, एक तो आलिया साहबा ने कहा कि यूसुफ रजा गिलानी साहब के टाइम पे जो वीडियोस आई थी, अभी भी 27 तक इंतजार करें, वीडियोस आएंगी। तो ये कोई खतरा है कि आपके लोगों ने कोई ऐसी ऑफर की हो और पकड़े जाएं? अच्छा, जहाँ तक आलिया साहिबा की तमाम गैर सियासी बातों का ताल्लुक है, ना मैं उसको जवाब दे रही, ना मैं ऐसी सियासत करती और ना मैं ऐसी बातें करती। जो दूसरी बात है जो आपने की, जिसके पास जो सबूत है वो ले आए, और जो वीडियो कहती हैं ये कि यूसुफ रजा गिलानी के बेटे की थी, तो वो मौजूद है ना इलेक्शन कमीशन में, उसको वो देख लें कि वो क्या कह रहे हैं और क्या नहीं कह रहे, उसके हिसाब से करें। ना यूसुफ रजा गिलानी कहीं भागे, ना उनके बच्चे कहीं जा रहे, ना राजा परवेज अशरफ कहीं गए, ना कोई कहीं गया। अब रही बात सिंध की तरक्की की, खुशहाली की, जो कुछ भी इनको समझ आ रहा है वो समझते रहे। असल बात जो है वो ये है कि 28 तारीख को खुदा करे कि आपके नंबर पूरे हो, उसकी कोशिश करें। जहाँ तक बात है एमक्यूएम की, उसको यह है कि हम हर एक से खुल्लम खुल्ला डायलॉग कर रहे हैं। हमने असेंबली के अंदर कानून के दायरे में रहते हुए मुख्तलिफ वक्त में आवाज़ बुलंद की, फिर पूरे पाकिस्तान में आवाम के साथ खड़े होकर मुख्तलिफ मौज़ूआत पर, कभी बिजली के ना होने पे और महंगे होने पे, कभी गैस की लोड शेडिंग और महंगे होने पे मुजाहरे किए, कभी किसानों को जो है जो खाद और यूरिया कंट्रोल रेट पे नहीं प्रोवाइड कर सकी हुकूमत, उसका मुजाहरा किया, और फिर ये लॉन्ग मार्च की। कहीं से आवाज़ नहीं आई कि 800 रुपये दे के हमें लाया गया है, या बसों वालों की आपस में तबादला ख्याल करते हुए, या ये कि जी लित्तर पोला हाजिर है। तो लोग आए, उसमें शरीक हुए, क्योंकि ये एक प्रोटेस्ट रजिस्टर कराने का तरीका है, और हमने धरने की कभी बात नहीं की। और अगर हम वहाँ पे धरना देके कहते कि पार्लियामेंट पे लानत है और लानत भेजते हैं इमरान खान की तरह, तो हम में और आप में कोई फर्क ना रह जाता। तो कॉन्फिडेंट है हमने एमकेएम के मामले के ऊपर रिकॉर्ड कराया और चले गए। कॉन्फिडेंट है एमकेएम और पीपल्स पार्टी, क्योंकि बहुत दूर चले गए थे। कल बिलावल साहब ने बड़ा एक सॉफ्ट किस्म का एक मैसेज भी दिया, एक हेल्दी मैसेज था एमकेएम के लिए। आपको अब लगता है कि ये फासले मिट रहे हैं और इस हवाले से अब डेवलपमेंट हो रही है?
देखिए मैं तो एक वर्कर खातून हूँ और जो कुछ टीवी पे देख रही हूँ उसी से अंदाजा लगा रही हूँ। मैं ये समझ रही हूँ कि इतना फ्रस्ट्रेटेड हुकूमत का एक एक शख्स जो नज़र आ रहा है, ज़बान से शुरू होता है ज़ातियात तक, तो कुछ तो है ना जिसकी वजह से ये इतना हिस्टेरिक अंदाज हो रहा है। और हम इंतज़ार कर रहे हैं 28 तारीख का, और आप खुद देखिएगा कि क्या होता है क्या नहीं होता। ये एक डेमोक्रेटिक मूव है और हम समझते हैं कि हम कामयाबी की तरफ हैं। और उस दिन 10 लाख बाहर खड़े कर दो या 20 लाख बाहर खड़े कर दो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। फैसला असेंबली में होना है। पहले भी आपने धरना जब दिया था उसके बाद आपको असेंबली आना पड़ा था। ठीक, तो ये आलिया साहब, इत्तेहादियों पे मैं चाहूँगा आप ज़रा कमेंट कर लें इससे पहले कि मैं दूसरों की तरफ जाऊँ, कि ये इत्तेहादी जो हैं क्यों शेकी हो रहे हैं? खुल के क्यों नहीं कहते कि हम इमरान खान साहब के साथ हैं? वो कहते जी फैसला करेंगे, मशावरत कर रहे हैं, अपोजिशन के साथ भी जा सकते हैं। कल परवेज़ इलाही साहब कहते जी अगर हम चले गए तो वजारतों से इस्तीफ़ा दे देंगे। क्लैरिटी क्यों नहीं है अलाइज़ के अंदर आपके? अच्छा, सबसे पहले तो मैं इत्तेहादियों के बारे में बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात बता दूं। काफ लीग जरदारी से नून लीग की गारंटी मांग रही है और एमक्यूएम नून लीग से जरदारी की गारंटी मांग रही है, और फिर ये कहते हैं हमें सियासत नहीं आती, फिर ये कहते हैं हम फ्रस्ट्रेटेड हैं। तो आप इसी से अंदाजा लगा लें जिनका एतमाद एक दूसरे पे नहीं है वो हमारे खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक को सक्सेसफुल करेंगे। जी इनका आईनी तरीका है, हम तो वेलकम करते हैं। हम तो पहले भी इतने दिनों से कहते थे जल्दी अदम एतमाद लेकर आए, अब तो हम सिर्फ कह रहे हैं OIC का इजलास हो जाए, 23 मार्च की परेड वगैरह हो जाए, उसके बाद खुल के मैदान में मुकाबला करेंगे। और इंशाअल्लाह ताला जब ये, तो मैं आपको बता दूं ये अभी 3 जलसों से ही, ये जो 3 जलसों में अवाम आई है ना, ये जो साजिशी है ना, गैर मुल्की फंडेड साजिशी, इनकी कांपे दिल गुर्दे फेफड़े सब कुछ टांग रहे हैं, क्योंकि ये डरते हैं अलाइज रहेंगे आपके साथ, अलाइज कहीं नहीं जाते आलिया साहब, वोट की इज्जत से, ये डरते हैं सिविलियन बालादस्ती से। देखें जी मैं आपको बता रही हूँ हमारे इत्तेहादी हमारे साथ हैं और ये अनकरीब इनको नजर आ जाएगा। कोशिशें करने दे, फिरने दे, इत्तेहादियों को भी नाज नखरे उठवाने दे इनसे। आखिर में हमें पता है फतह इंशाल्लाह हमारी होनी है, ये जो मर्जी कर ले। मुल्क का नाम बता दें जो फंडेड कर रहा है। 5 दफा कंसेक्टिव 5 दफा इनको हम जो है शिकस्त दे चुके हैं। हर दफा जब ये पीछे मुड़ते हैं इनके अरकान ही कम होते हैं। अभी भी मैं बता दूं हो सकता है वो जो है ना हमारी एक जो हमारी बेस्ट प्लेयर है उनके ग्रुप से कुछ लोग कम हो जाएं। हो सकता है कि कुछ और दीनी जमातों के लोग जो है वो दीनी इज्तिमा पर चले जाएं। यहाँ होने को तो कुछ भी हो सकता है। ये पीछे मुड़ के देखेंगे ना 172 बंदे नहीं पूरे होने। चलें राना साहब, वो कहते हैं आप अपने बंदों की फिक्र करें, कहीं ये ना हो कि आपके बंदे कम हो जाएं। मुल्क का नाम बता दें कौन सा मुल्क फंडिंग कर रहे हैं। जी वो भी बता दो। जी राना मकबूल साहब, आप मेरी बात सुन लें जी जरा। आप थोड़ा फिक्र करें कि आपके लोग जो कर रहे हैं, आपका स्पेशल असिस्टेंट कहता है कि हम उनके घरों को जो है ना उन पर कब्जा कर लेंगे, उनको रोटी पानी नहीं देंगे जो हमारे खिलाफ वोट देंगे। आपका गवर्नर जो है वो कहता है हम उनको अपने घरों में घुसने नहीं देंगे। प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि देखें हम आता कैसे कोई है। और जो इनके सारे ये सारी की सारी वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। जो आर्टिकल 63A है उसमें प्रोसीजर पूरा दिया हुआ है। ये वायलेशन ऑफ आर्टिकल 4, 5 और 6 है। इन पे आर्टिकल 6 लगेगा। ये बात याद रखते हैं। ये कुछ छोटी बात ही जो ये वायलेशन करना चाहते हैं। इसलिए अपनी पार्टी के लोगों को आगाह कर दें कि कानून को अपने हाथ में न लें, और इसमें लाजमी अगर उन्होंने ऐसी कोई हरकत की कानून को वायलेशन करने वाली, आइन को वायलेशन करने वाली, तो ये आर्टिकल 6 के मसूजब होंगे। इमरान खान साहब आर्टिकल 6 के होंगे। Down the line, everybody is also responsible for violating the constitution. कोई भी हो उसमें, ठीक, कोई भी हो, आप आइन को पढ़ें तो सही ना जी। ठीक, आप पहले मुताला तो कर लें खुदा के लिए। आर्टिकल 4 पढ़ लें, आर्टिकल 5 पढ़ लें, आर्टिकल 6 पढ़ लें। ठीक, Why are you trying to violate the constitution? ये 63A में प्रोसीजर दिया हुआ है, उसको अपने तरीके से चलने दें। Why are you creating hindrances? कभी किसी को डरा रहे हैं, किसी को धमका रहे हैं, किसी को टेरिफाई कर रहे हैं। They should not do this. ये डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, अकॉर्डिंग टू लॉ हो रहा है। शाहिद साहब, अब आपकी स्ट्रेटेजी अपोजिशन का आगे वे फॉरवर्ड क्या है? आज शहबाज साहब, आसिफ साहब और मौलाना साहब फिर मिल रहे हैं।
कल हमारी इत्तला ये है कि इत्तेहादियों से भी मौलाना साहब की और शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात है। कोई आप होपफुल हैं इत्तेहादियों की तरफ, काफ लीग और एमकेएम की तरफ, और आगे आपकी स्ट्रेटजी क्या है, किस तरीके से आप आगे बढ़ेंगे? 28 तारीख का तो बिल्कुल 2 हफ्ते बाकी रह गए उसमें। जी बिल्कुल, हमने जो तहरीक अदम एतमाद पेश की वो इसी उम्मीद पे पेश की कि हम अपना होमवर्क कर चुके हैं। इंशाल्लाह होपफुली कि जब भी देखें मुकाबला होता है तो उसमें बंदा जब जाता है, हम खिलाड़ी नहीं हैं लेकिन फिर भी पीछे नहीं हट रहे, ना अपने बाकी खिलाड़ियों को कह रहे कि आपने मैदान में नहीं उतरना। जिस तरह 63A की कभी तशरीहात गलत हो रही हैं और आज जब कानूनी सेक्रेटेरिएट तरफ से जो लेजिस्लेशन ब्रांच ने स्पीकर को तशरीह पेश है, पता नहीं अब इसके बाद ये और क्या करेंगे। अभी तक तो ये प्ली ले रहे थे कि हम अपने अराकीन को नहीं जाने देंगे और मुनहरफ अराकीन के खिलाफ आर्टिकल को लेके आ रहे। तो ये सारे डिलेइंग टैक्टिक्स है। मैंने आपको कहा कि 10 बातों की एक बात हम पेश कर दी, आर्मी सेशन बुलाएं और क्लियर हो जाएगा कि क्या सूरत हाल है सामने। ये OIC का जो इजलास है बेशक इम्पोर्टेंट होगा, लेकिन ये फॉरेन मिनिस्टर का इजलास है, इसको इतनी इम्पोर्टेंस नहीं है एज कंपेयर टू जो अभी तहरीक इस प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट आई है। आप असेंबली सेशन बुलाए, कहीं और भी हो सकता है, ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है। लेकिन ये अपने डिलेइंग टैक्टिक्स यूज कर रहे और नाकामी इन्हीं को होगी। अल्हम्दुलिल्लाह अपोजिशन अपना काम कर भी चुकी है और आगे की भी अच्छी उम्मीद है कि इंशाल्लाह इत्तेहादी अभी हमारे साथ होंगे, अगर नहीं भी है फिर भी हमारा नंबर पूरा है और आप बहुत जल्द खुशखबरी सुनेंगे। तो ये तहरीक अदम एतमाद कामयाब होने के बाद की भी स्ट्रेटजी आपने फाइनल कर ली है या नहीं? अभी उसके बाद उसको वो मराहिल बाकी हैं, वो बाद में तय करेंगे? वो तो अभी कबल अज़ वक्त है मीडिया के सामने आना। वैसे कायदीन जो अपनी मुलाकात कर रहे हैं तो डेफिनेटली एक स्केच तो होता है ना कि आगे हमने क्या करना है, वो कायदीन ही बेहतर बता सकते हैं। वो जब भी मेहनत करना चाहेंगे इंशाल्लाह मीडिया को एतमाद मिलेगी। चलें यहाँ एक वक्फा ले लेते हैं, वक्फे के बाद आते हैं तो फिर प्रोग्राम को कंक्लूड करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। सेनेटर राना मकबूल साहब, शाहिदा अख्तर अली साहिबा, शैला रजा साहिबा और आलिया हमजा साहिबा मेरे मेहमान हैं। शैला साहिबा, आप ये फॉरेन फंडिंग के हवाले से, मतलब कि जी ये बैरूनी फंडिंग है अपोजिशन की, इस मूव के ऊपर आलिया साहिबा की जो बात है उसके ऊपर आप कमेंट करना चाह रहे हैं? पार्टी फंडिंग केस इनका 7 साल से चलने नहीं दे रहे ये। हालांकि रियासत मदीना के दाई होने की हैसियत से इन्होंने कहा था कि पहले हम अपने घर से एहतसाब शुरू करेंगे। तो अब स्क्रूटनी कमेटी की जो रिपोर्ट है उसमें एक भारत और 349 दूसरे ममालिक के तरफ से फंडिंग है। 4 इनके नौकर हैं इमरान खान साहब के, जिनके अकाउंट में पैसा आया और फिर उसमें से इमरान साहब की तरफ गया। तो अब हमें बता दें कि हम कौन से ममालिक से फंड ले रहे हैं, क्योंकि अमेरिका की तरफ से तो आप कह रहे हैं आपको शाबाश मिल रही है और यूरोपीय यूनियन की तरफ से भी, तो आपको किसी की जरूरत एम्बेसडर मिल रहे हैं अपोजिशन के लोगों के साथ। एक काम चाहिए, इनको सिर्फ एक काम करना है। देखें, मैं तो इनको और सिंपल कर रही हूँ, हमें बुरा भला कह के सारी पार्टीज को 10 लाख बंदे इकट्ठे करें। 172 हमने कर लिए है। अच्छा, आपने वो आलिया साहब कहते हैं अंदर हमारे बंदे पूरे, बाहर आप 10 लाख करें या 20 लाख करें कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे एक बात बताएं, खुश फहमी में ये बड़ी दफा रहे हैं, फेटफ का हो, जॉइंट सेशन हो, मिनी बजट हो, इनके अपने बंदे पीछे से खिसक जाते हैं, इन्होंने हमें क्या कहना है। बात सिर्फ इतनी, अभी मैं सारी बातें सुन रही थी। पहले तो 63A पर मैं बता दूं, जमहूरियत और आइन का राग अलापने वाले ये कह रहे हैं कि अगर हॉर्स ट्रेडिंग और फ्लोर क्रॉसिंग को आपने रोका ना, ये बहुत बड़ा गैर आइनी होगा और आप पर तो आर्टिकल 6 लगना चाहिए। इसलिए मैं अब इस चीज के ऊपर मेरी तो मतलब मैं हैरान हूं कि इतने बड़े बड़े पुराने लॉ मेकर्स अगर इतनी छोटी सी बात समझ में ना आए तो मैं क्या कर सकती हूँ। बाकी मेरी जो दूसरी बहन थी वो, उन्हें इस्लाम की तो फिक्र है नहीं, इस्लामाबाद की ज्यादा फिक्र है, वो तो हमें पता था। उन्हें तौहीन रिसालत की तो फिक्र है नहीं, तौहीन अमेरिका और तौहीन यूरोप की फिक्र है। अब आ जाए शैला बीबी के ऊपर, शैला बीबी के ऊपर अब आ जाए शैला बीबी के ऊपर। सुन लेना अब अगर देखिए हौसला रखा, हम तो 3 लोगों का मुकाबला करते हैं यहाँ पर
चले अभी हम चूंकि तो 3 लोगों का मुकाबला करते हैं। अब आ जाए फॉरेन फंडिंग के ऊपर, चले फॉरेन फंडिंग की भी स्टोरी सुनाने देना। फॉरेन फंडिंग के ऊपर जो भी रिपोर्ट आई है, मैं तो हैरान हूँ। मतलब हम सारी रसीदें जमा करा चुके, इनके पास शैला साहबा कहती हैं हमें कहाँ से फंडिंग हो रही है, अपोजिशन को कहाँ से फंडिंग हो रही है, वो नाम बता दें कि आप हमें फॉरेन। एक मिनट, पहली तो बात है केस फॉरेन फंडिंग का तो था ही नहीं, प्रोहिबिटेड फंडिंग का था। फॉरेन फंडिंग तो हम पे प्रूफ ही नहीं हुई है, यही तो इनकी गलत फहमी है। फॉरेन फंडिंग तो वहां प्रूफ हुई है जिस पार्टी का एक चेयरमैन है आसिफ जरदारी, दूसरा बिलावल जरदारी, दोनों आपस में सलीमुल्लाह टू कलीमुल्लाह खेल अच्छा, रहे हैं। और आलिया साहबा कहती हैं हमें अपोजिशन की मूवमेंट को कहाँ से फंडिंग हो रही है। लॉबिस्ट को अमेरिका आलिया साहबा सवाल अमेरिका में उनका सीवी दिया जा सके। सवाल ये, वो कहते हैं कहाँ से फंडिंग हो रही है। स्टेट बैंक कह रहे हैं जिसपे सुन तो लेना, मैं वही बता आपने आज हाफिज तारिक कैसा प्रोग्राम किया है, मैं तो हैरान हो गई। नहीं पता चल रहा आपको, इनकी तकलीफ से नहीं पता चल रहा। चले मैं वो हमजा मैं उसकी स्टेटमेंट देता है, हमजा शहबाज कहते हैं एब्सोल्युटली नॉट, क्यों कहा था हमजा शहबाज आकर कहते हैं यूरोपियन यूनियन को आपने ये क्यों कहा था हम आपके गुलाम नहीं है, हम तो उन गैर मुल्की आकाओं के गुलाम है, इसलिए कि उनकी जो दूसरी अब ये बात आगे चलेगी। मैंने आलिया साहबा दोनों की आलिया साहबा तो हम उनके मैंने एक आखिरी सवाल पूछना है तमाम लोगों से। जी मैं आखिरी सवाल मैंने सब लोगों से जरा सबको पता है चले अनासिर इनको फंड कर रहे हैं। अच्छा चले जी, वक्त खत्म हो रहा है। मुझे आखिरी चीजें आता है, शाहिदा साहबा चोरों को एक्सपोज कर शाहिदा चले जी शाहिदा साहबा आप इस पे थम्स अप करिए तो आप करते रहे, अदालत में करें, आपके कहने से थोड़ी हो जाएंगे। अदालत में जब होगा बात है, अदालत में जाने से चुप पड़ जाती है। अदालत में जाने के लिए व्हील चेयर पर आ जाते हैं और बीमार हो जाते हैं। चले ये लाहासिल बहस में हम चले जाएंगे। वो जिनको बुलाएंगे अदालत वाले, एक की एम्बुलेंस खान साहब ने छुड़वा दी, एक की व्हील चेयर खान साहब ने छुड़वा दी। चले आलिया साहबा, मैं मुझे शाहिदा साहबा से सवाल पूछने दें। कर रहे हैं, थोड़े बूट पॉलिश भी कर रहे हैं। चले मुझे आखिर में सब लोगों शाहिदा साहबा, ये देखिए एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस में आप गई है आपकी पार्टी बाकी अपोजिशन के साथ। ये डेमोक्रेटिक प्रोसेस में कामयाबी भी हो सकती है, नाकामी भी हो सकती है। नाकामी की सूरत में इसका मलबा तो कहीं और नहीं गिराएंगे आप? हाँ बस ये जी, हम पर उम्मीद है कि इंशाल्लाह कामयाबी होगी। ठीक। ये जिस तरह डिलेइंग टैक्टिक्स कर रहे हैं, जिस तरह उस दिन पार्लियामेंट लॉजेस में इन्होंने चारदीवारी की तकद्दुस को पामाल किया और किस तरह 4-5-6 बंदों को जो कि बेजरर एक मेहमान थे एक पार्लियामेंटेरियन के घर, सिर्फ एक सेकंड हाफिज साहब, एक छोटी सी गुजारिश कर लो। झूठ बोलने पे ना, झूठ बोलने पर भी कुछ होना चाहिए। बहुत जल्दी आप देखेंगे। तो फिर आपको तो प्रोग्राम में होना ही नहीं चाहिए इससे झूठ बोले। शाहिदा साहबा की बात, शाहिदा साहबा की बात, इनके गुंडे अटैक कर रहे थे और ये आकर कहेंगे चादर और चारदीवारी पर हमला करने वाले इनके जत्थे, हमला करने वाले इनके गुंडे, और आगे आकर शाहिदा साहबा कह रही है वो सीरियस, इनके गुंडे वो देखे थे वो किस तरह, वो कह रहे हैं बड़ा नाजुक और हसास मौका है, बड़ा टाइम है। जी शो करेंगे इंशाल्लाह। जी राना मकबूल साहब, तहरीक अदम एतमाद नाकाम हुई तो किसी पे कोई वो गिला तो नहीं हो गया, ये हो गया फलाना हो गया, अंपायर हो गए, यूं चीजें हो गई, हमारे बंदे आगे पीछे हो गए? आप हाफिज साहब, आप खुद नेक आदमी, आप क्यों ये तवक्को कर रहे हैं इंशाल्लाह कामयाब होगी? अच्छा चलिए, बहुत आप क्यों सोच रहे हैं? ठीक इंशाल्लाह कामयाब होगी। ठीक। आलिया साहबा, अगर तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो गई तो आप नजला तो नहीं गिराएंगे कि हमारे बंदे बिक गए, सब यूं हो गया, इत्तेहादियों ने साथ छोड़ दिया? देखें मेरी एक बात सुन लें, मैं आपको बता रही हूँ, इनसे पूछ लें 28 मार्च के बाद कौन सी पतली गली से भागना है और पहले किससे भागना है, मौलाना ने भागना है या उसके पीछे सरदारी साहब ने भागना है, या वो कह रहे हैं वो आपकी गलियां ना बंद कर देना, वो फिर भी आपको किसी बंद गली में ना ले जाए। आज बता रही हूँ। और अदम एतमाद तो इनकी नाकाम होनी है, ये आप कहीं भी लिख लें या आज लिख लें, उस दिन चलाइएगा जरूर, अदम एतमाद इनकी नाकाम होनी ही होनी। शैला साहबा, कौन सी पतली गली से आप जाएंगी आलिया साहबा?
साहिबा का सवाल। दौड़ने दें, कोशिश करने दें, आखिर मैं में बता इन्होंने देती मुंह हूँ, छुपा कर मैं भागना बता है। देती हूँ, अगर ये खामोश हो जाए, जी शैला इनके साहबा। बोलने से पता चल रहा है। देखिए, इमरान की तरह ना दीवार कूदेंगे, ना अलीमा बाजी की तरह पिछली गली से भागेंगे, यहीं खड़े रहेंगे, चुक भी होगी एक कमर बात में, बता हर दो, पेटी पे अलीमा आएंगे, पार्टी बाजी फंडिंग ने अपने केस की तरह पैसे भी साथ दिए, साथ लेकर जरदारी करेंगे। साहब की तरह सही चुप है, नहीं पड़ेगी अलीमा बाजी हमें, ने और करोड़ों फरियाल रुपए जो अब्दी की दिए तरह ना, बीमार वो होकर ऐसे नहीं नहीं हम दिए, जाएंगे, रेवड़ियां बीमार होकर बांटने हम के लिए, अस्पतालों में अंधा नहीं बांटे जाएंगे। रेवड़ी अपने बात को। सिर्फ इतनी तो है, भाई, हमने अब्दी तो की आपको तरह बता हम दिया। बीमार नहीं होंगे, या अब्दी उनकी की तरह तरह हम डटे सोटी हुए, पकड़ कर नहीं अब्दी की आएंगे तरह कि डटे हाय मैं रहो। बीमार हो गया, अब्दी जैसे की ही तरह डेट्स आती डटे हैं, रहो। फिक्र ना करे, कुछ नहीं होता। अब्दी की चलें, तरह चल- डटे कुछ नहीं रहो। होता, चले, डटे मैं- हुए मैं- इमरान अब्दी खान की को आप तरह नहीं डटे रहो। जानती, इसीलिए कोई एक एक पैदा खिलाड़ी कर लो आप सब अपने चोरों यहाँ। का मुकाबला कर रहे हैं। शाहिदा साहबा लास्ट सेंटेंस आपका, ताकि ये प्रोग्राम ये थोड़ी सी गर्मी भी कम। चले, मैं शाहिदा साहबा का खिलाड़ी का काम नहीं है, लास्ट सियासत में खिलाड़ी का काम नहीं है। जी मैं बिल्कुल, उसी खिलाड़ी ने आपको बल्ले से ऐसी मारे लगाई है ना, सबको दौड़ा के जी रख दिया, नहीं, सब कोई- शाहिदा साहबा लास्ट सेंटेंस। कैसी दौड़े लगी चले, हैं? मैं शाहिदा साहबा की बात माथा सुनिए। टेक रहे हैं, आपको कभी लग दूसरे रही के है, घर माथा आपको टेक रहे लग रही हैं, है कभी मिसेस जागीर न्यूट्रल तरीन को। साहब के घर, कभी अलीम खान साहब के घर, कभी चौधरियों के वो घर, आप कभी लोग जा एमपीएम रहे, वालों के घर, हमारी कभी तो बाप कोई वालों लड़ाई के नहीं घर, थी। वो जिन्होंने व्हील चेयर और सोटियां पकड़ी हुई थी। बिल्कुल। आज इमरान खान, मैं कह रही हूँ, भगाएंगे हम, और 10 दिन आपको भगाएंगे हम, तो ये इमरान तमाशा खान देख खुद चले जा चले रहे वो हैं। बस वो कहते हैं इमरान खान साहब खुद भाग रहे हैं। मैं शायद लास्ट कमेंट जी, शाहिदा साहबा लास्ट कमेंट मैं कोट कर दूं जी हाफिज जी। जी शायद इमरान साहब का एक क्लिप है जी कि पीएमएल-क्यू और एमक्यूएम के पास जाना पड़ा तो मैं हुकूमत ही नहीं बनाऊंगा। अब दोनों जगह नाक रगड़ रहे हैं। खुदा हाफिज। जी शाहिदा साहबा लास्ट कमेंट जी प्रोग्राम मैं करते आपको बता दूं, मैं चल- आपको बता दूं, अली साहब, लास्ट कमेंट ले लेंगे शाहिदा साहब। मिलना तो ऐन इबादत है, आप लेकिन कितना हमारा बताएंगी? इत्तेहादियों से मिलना जो है, क्या बताएंगी? इनको इतना मुझे ना शाहिदा निभाते साहिबा से हैं। लोग बड़ा हैं। अफसोस। शाहिदा साहिबा जी कंक्लूड कर दीजिएगा। भाई शाहिदा साहिबा की हजारों का एहतराम करते तो हैं हमें हंसना और चाहिए, इनको हम भी तो कहते आपकी हैं हालत राना साहब, ये मतलब ये कैसी 3 दौड़े खवातीन में आप ही बोलते हैं, ताकि हदूद कोई में रहें। जी हम खुश जब हैं। भी जिसने हमने अपनी खुल्लम हदूद खुल्ला को दौड़ क्रॉस लगाई किया, है, वो हम बड़े नुकसान खुश हुआ। हैं, हम बड़े और अभी भी सुकून में वक्त बैठे है कि हैं। अपने आलिया साहिबा, शैला साहिबा बे- जब भी हर वक्त फूलों में बैठ के आज का जब भी हर प्रोग्राम वक्त करूं, आपके मिनिस्टर चाय बोलाए पीऊं, चाय- वहाँ पर कॉफी चाय- पीऊं। आलिया साहिबा जी, शाहिदा साहिबा से वो खिलाए पे शा- खिलाए मैं वो शाहिदा खिलाए। साहिबा की बात मैं सुन रहे हैं, तो आखिरी बैठ के प्रोग्राम। आज का प्रोग्राम करना जी चाहती जी शाहिदा साहिबा हूं। कहीं भी मैंने बैठ के यही करें, जी। बंदे 10 कहना लाख है जमा कर जी। लेना उस दिन। कि हम जमहूरी लोग हैं। ठीक। हमारी पार्टी न सिर्फ सियासी बल्कि मजहबी पार्टी भी है। हमें ठीक। पता है कि कानून के क्या अगराज व मकासद होते हैं, क्या हदूद व कवानीन होते हैं, और शरीयत के क्या कवानीन होते हैं। हम पाबंद हैं उन कवानीन के, वरना बदजुबानी का भी जवाब आता है, इस तरह की ज्यादती का भी आता है, लेकिन ये हमारी तरबियत दोबारा नहीं करती। ठीक है। और इंशाल्लाह हम यहीं पे रहेंगे, सियासी तौर पे मुकाबला करेंगे। इनके असाब जवाब दे गए हैं। ठीक है, शाहिदा अख्तर अली साहिबा, शैला रजा साहिबा, आलिया हमजा साहिबा, सेनेटर राना मकबूल साहब, तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। कल इसी प्रोग्राम में इंशाल्लाह इसी वक्त दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।